Yes, so we are starting practice at 1.2 of the chapter linear equation in two variable. Okay. This is the graphical method. So we are solving graphical method. So let me write graphical method. Graphical method. Perfect. So, so what is saying my question number one? Complete the following table to draw graph of the equation. But we are not supposed to draw the graph. Just we are supposed to complete the table. Okay. सो क्या बोल रहा है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन वन, ये देखो ये इक्वेशन वन हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 3, let us take x is equals to 3. So what will give? 3 plus y is equals to 3. This plus 3 will go here and become negative 3 na. So y is equals to 3 minus 3, which is nothing but 0. So when x is equals to 3, the value of y is 0. So we are here supposed to write 0. Is it clear, guys? Now, for the second part, what they had given? Y is equals to 5. Look at this. Y is equals to 5. So what we will take? Um, X plus Y is equals to 5. Is equals to 3. Sorry, yeah, 3. So if X is equal, Y is equals to 5, then what is the value of 3? So this will give me 3 minus 5. Therefore, X is equals to 3 minus 5, which is nothing but minus 2. So my X becomes minus 2. Perfect. For the next step, if Y is 3, similarly like the first one, that is x plus 3 is equals to 3, which implies me x is equals to 0. Perfect. This 3 will go on right hand side and becomes negative. So it will give me 3 minus 3, which is nothing but 0. So our answer will be 0. So here we are supposed to write minus 2 comma 5. Perfect. Now for the second subpart, let me erase the first one. What they are saying, when y is equals to 0, if I am putting here y is equals to 0, so it will directly give me x is equals to 4 na. So here I will write x is equals to 4. So our point will be 4 comma 0. Perfect. For the next part, they are saying that x is equals to minus 1. um let us take minus 1. So this y will go there and become positive, and this 4 will come on RHS, which is negative 4. So minus 1 minus 4. Wait, I am writing on the board. What they had given? X minus y is equals to 4, and the value of x is minus 1. So this will give minus 1 minus y is equals to 4. So what is will be? Minus 1 minus 4 is equals to y. Y को इस साइड ले लिए और 4 को इधर ले लिए, ठीक है। सो देयर फोर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू वाई। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमको? माइनस फाइव। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? माइनस वन माइनस फाइव, ठीक है। होप सो ये आप लोगों को समझा रहेगा। वैसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट सम्स में देखेंगे, इसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना है हमको, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट द टेबल बोला था, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? हम्म नेक्स्ट सम, व्हाट दे आर सेइंग, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, हम सब पार्ट वन करेंगे। कौन सा सब पार्ट करेंगे? सब पार्ट वन। सब पार्ट वन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है मुझे बताओ? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। और सेकेंड पार्ट क्या है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू फोर, ठीक है। सो हम लोग ना इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसा है देखो, पहला कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कर लो, कुछ भी अज्यूम करो, चलो मैं जीरो अज्यूम करता हूँ। अगर मैंने एक्स की वैल्यू जीरो डाली, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू जीरो डाला, तो ये वाई क्या बचेगा? सिक्स बचेगा। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,6। परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्स को सिक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिक्स। तो वाई क्या बन जाएगा बताओ मुझे? जीरो हो जाएगा। सिंपल ना। अगर आई एम टेकिंग एक्स इज इक्वल टू टू, अगर मैं एक्स की वैल्यू टू ले रहा हूं,
तो 2 उधर जाके माइनस होगा आरएचएस में, तो 6 - 2 कितना देगा वाई की वैल्यू? 4 देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, 0 एंड दिस विल बी 2, 4। परफेक्ट। नाउ फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, let me take to value of x will be 0. If I am taking x is equals to 0, then y will left with -4. परफेक्ट ना है? देखो इधर कैसा होएगा, देखो x 0 लूंगा, -y इज इक्वल्स टू 4 होगा, तो ये -y इज इक्वल्स टू 4 बचेगा, therefore y इज इक्वल्स टू -4 होगा कि नहीं? वैसे ही किया मैंने, ठीक है। तो ये 0, -4 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? 0, -4। परफेक्ट। इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, सो 1 क्या हो जाएगा? 1 - y इज इक्वल्स टू 4, देखो 1 - 4 इज इक्वल्स टू y, देखो -3 इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या बन जाएगा? -3। सॉल्यूशन क्या आएगा? 1, -3। परफेक्ट। इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी 2, सो ये क्या मिलेगा मुझे बताओ? 2 - y इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर 2 - 4 इज इक्वल्स टू y, so -2 is equals to y. So this will give me -2. So पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, -2। और एक बार बता रहा हूँ, ये जो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे मन के ऊपर है, जो नंबर लेना है ले लो। पर हाँ, इतना ही नंबर लेना जो ग्राफ के अंदर प्रॉपरली प्लॉट हो जाए। जैसे भी हमारे ग्राफ में कितना है? 14 तक जा रहा है, हाईएस्ट वैल्यू x की 14 होनी चाहिए, तो हम 14 से छोटा नंबर ही लेंगे, सो डेट हमारा काम हो जाए उसके अंदर, ग्राफ पे प्लॉट कर पाए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्या बोल रहे थे? देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, हम लोग चलो इसको अज्यूम करते हैं ए, इसको अज्यूम करते हैं बी, इसको अज्यूम करते हैं सी, इसको क्या अज्यूम करेंगे? पी क्यू आर। चलो हमारा टारगेट क्या है अभी बनाने का? ए बनाएंगे। ए के लिए पहला पॉइंट क्या पता? 0, 6, मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो ये हमारा डायरेक्टली वाई एक्सिस पे 6 पॉइंट देगा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ग्राफ में, ग्राफ में देखो मैंने प्लॉट किया है सर्कल हाईलाइट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? 6, 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है। तो हमको अभी 6 बनाना है एक्स कोऑर्डिनेट पे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब ये बन गया ना, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? इस पॉइंट को ज्वाइन करना। क्या करना होता है? ज्वाइन करना होता है। और एक पॉइंट बनाना है अभी हमको, देखो सी, 2, 4। टू कहाँ है बताओ मुझे? एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ है? देखो ये एक्स एक्सिस पे 2 रहा, और 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 2, 4 ये आएगा। परफेक्ट। 3 पॉइंट बन गए, तीनों पॉइंट हमारे फर्स्ट वाले के तीनों पॉइंट बन गए, इसका हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है? इसको ज्वाइन करना है, तो हमें इसको ज्वाइन करके दिखा। परफेक्ट। ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो 0, -4। क्या है? 0, -4। एक्स एक्सिस 0 है, ये पी का वैल्यू, पी का कोऑर्डिनेट देखो, पी का क्या बोला? 0, -4, तो ये -4 यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे -4, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या? 1, -3। 1 और -3 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या बोला है? 2, -2, 2, -2 ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन कर लेते हैं, चलो भाई। चलो ज्वाइन हो गया। देखो अब हमारा इसको नाम क्या था ये बताओ मुझे? पी क्यू आर, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन मिला, ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। इस पॉइंट का वैल्यू बताओ मुझे क्या है? 5, 1 है, क्या है?
5,1 ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। समझा आप लोग को ये ग्राफ कैसे बन रहा है, प्लॉट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, चलो सेकेंड सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं देखो। पहला इक्वेशन है इसका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, काय को भाई ठीक है। उसके बाद क्या इक्वेशन बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट लेते हैं, क्या लेंगे? रैंडम नंबर लो, कोई भी नंबर लो चलेगा। x का वैल्यू 0 लूंगा, y क्या हो जाएगा 5। अगर मैं y का वैल्यू 0 लूँ तो x क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये बहुत इजी होता है जो सिंपल नंबर्स होते हैं। आफ्टर दैट x का वैल्यू तुम लोग 2 ले लो, तो y क्या मिलेगा मुझे बताओ। अगर यहाँ पे 2 रहा तो देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इज इक्वल्स टू 5। सो y क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल्स टू 3 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलो इसको बना तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको मैं यहाँ पे a लिखता हूँ 0,5, फिर b लिखता हूँ 5,0, c क्या हो जाएगा 2,3। परफेक्ट। नेक्स्ट वाले ग्राफ में आ जाते हैं। चलो x का वैल्यू 0 लूंगा तो ये y माइनस 3 मिलेगा, और अगर y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो देख लेते हैं। 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज मी y इज इक्वल्स टू माइनस 3। परफेक्ट, पहला वाला पार्ट। और अगर y को 0 ले लूं तो मैं x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 आएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 बच जाएगा। ठीक है, अभी x की वैल्यू कुछ भी लो, चलो कुछ भी ले लो, 1 लो 1, तो क्या आएगा मुझे बता दो, मैं बाई साइड में सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। चलो पॉइंट ले लेंगे, क्या बोलेंगे, p 0,-3, आफ्टर दैट q 3,0, r पॉइंट कौन सा आएगा 1 - 2। परफेक्ट। चलो अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रेड इसका डार्क कलर कोई नहीं है। अम, चलो चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला, a 0,5, मैं रेडी रखता हूँ, रेडी बेचता, अच्छा नहीं लगेगा। एक ए कौन सा लेते हैं, पहला पॉइंट हमारा ये 0,5, मतलब वो वाई एक्सिस पे 5 आएगा। चलो वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पे ढूंढो, ये देखो ये वाई एक्सिस पे 5 ये रहा, ये वाई एक्सिस का 5 है। इसका नाम क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 5,0, ये वाला देखो बी वाला पॉइंट, 5,0 मतलब वो एक्स एक्सिस का 5 है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बोला 2,3, और एक्स का वैल्यू 2 और ये 3, ये हमारा कोऑर्डिनेट बी था, और ये 2,3 सी है, ठीक है। अब इसको हमारा टारगेट क्या होता है, लाइन को ज्वाइन करना। तो लाइन को ज्वाइन करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा ना कैसे कर रहे हैं। चलो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके से आप लोग ग्राफ में ड्राइंग प्लॉट कर दोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है देखो, पी, पी का वैल्यू क्या, 0,-3, मतलब वाई की वैल्यू -3 है। वाई की वैल्यू -3 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ये हमारा पी बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला 3,0, एक्स की वैल्यू 3 ये है, ये क्या हमारा क्यू है। फिर 1,-2 है, 1,-2, ये देखो 1,-2, इसका वैल्यू आर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, लाइन को ज्वाइन करना है तीनों पॉइंट को। चलो अब इसको ज्वाइन करने का काम करेंगे हम लोग, कैसे करो, हो गया, परफेक्ट। सो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला मुझे बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है, आंसर होता है, इसको हाईलाइट करके दिखाना होता है। सोल्यूशन क्या आएगा, 4,1, 4,1। परफेक्ट गाइस, ठीक है। हम नेक्स्ट हम करते हैं, ये कैसा आपको समझा होगा। नेक्स्ट करते हैं चलो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ना, अभी हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। अभी क्या आ रहा है, चलो बोलो मुझे। x plus y is equals to 0 and the second part is 2x minus y is equals to 9। अब जैसे से चैलेंजिंग होते जाएंगे सम, तो हमको पेशेंटली देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला पार्ट में चलो, अब
अगर मैं एक्स को जीरो ले लूं, एक्स को जीरो ले लूं, तो वाई की वैल्यू भी जीरो बचेगी। तो ये ए क्या बन जाएगा हमारा, 0,0। लेट मी टेक एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो वाई क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा, 1,-1। इफ आई एम टेकिंग एक्स एस 2, सो वाई विल बिकम -2। ठीक है, सो सी विल बिकम 2 - -2। ये सबसे इजी था। अब नेक्स्ट पार्ट जरा सा चैलेंजिंग है, देखना हाँ क्या। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले लूं, तो ये क्या बनेगा बताओ मुझे, 2 × 0 -y इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर -y इज इक्वल्स टू 9। सो हमको y क्या मिल जाएगा, -9 मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे आएगा -9। p की वैल्यू क्या आ रही है, 0, -9। पक्का। अगर मैं y की वैल्यू जीरो लूं, y की वैल्यू जीरो मत लेना, चलो जीरो लेंगे तो क्या होगा, चलो अगर मैं जीरो ले लूं, यहाँ पे देखो 2x - 0 इज इक्वल्स टू 9। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। पॉइंट वाला नंबर आएगा ना, इसके लिए हम लोग इस पार्ट को हम लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं x की y की वैल्यू को क्या देता हूँ, 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू को क्या लूंगा, 1 ले लूंगा। तो क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ पे देखो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 9। देखो 2x इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि ये -1 इधर आके ऐड होगा। x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 मिलेगी। अगर मैं y का वैल्यू सिमिलरली 2 ले लूं, 2 नहीं 3 लेते, चलो 3, ये 2 हमारा लेंगे ना तो ऑब्वियस 11 हो जाएगा ऐड होके। चलो 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखो, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 9। therefore 2x इज इक्वल्स टू 12। therefore x इज इक्वल्स टू 6। परफेक्ट। तो हमको ये क्या मिलने वाला है, पी क्यू की वैल्यू आएगी 5,1 एंड आर की वैल्यू आएगी 6,3। सिंपल। चलो प्लॉट करेंगे फटाफट। पहला ए क्या है बताओ मुझे, 0,0। 0,0 यहाँ पे होता है, ये ए हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1,-1। ओके, मैं ए को जरा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट आने वाला है। ये मैं ए इधर लिखता हूँ, ठीक है। 1,-1 इधर आने वाला है, 1,-1। ये हमारा बी है। उसके बाद क्या बोला है, 2,-2। 2,-2 इधर आ गया, ये हमारा सी। अब इसको हमको क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। चलो एबीसी को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए पहले मुझे एक लाइन की जरूरत होगी। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मुझे बताओ, पी का। 0,-9, ये पी का वैल्यू 0,-9 है। 0,-9 मैंने वाई एक्सिस पे -9। ये पी है हमारा। उसके बाद क्या आ रहा है देखो, 5,1। 5 और 1 यहाँ पे है। चलो उसके बाद क्या बोला है, 6,3। 6 और 3। ये पी था, ये क्यू है और ये आर है। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ को ज्वाइन करना, मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करना। कंट्रोल वी। पॉइंट प्लॉट हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मुझे बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये हमको सोल्यूशन देगा, क्या देगा, सोल्यूशन। आंसर क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का -3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है, चलो ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, हल्का सा ध्यान देना है। चलो फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। क्या आ रहा है, पहला इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x - y इज इक्वल्स टू 3। चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू पे जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 3,0 -y इज इक्वल्स टू 2। तो -y इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, y इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ये हो गया -2। तो हमारा a कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,-2। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं y की वैल्यू को 1 ले लूं, क्या ले लूं, 1, तो ये क्या बचा मुझे बताओ, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, तो हमारा b का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 1,1। ठीक है।
तो चलो y की वैल्यू को क्या लूँ अब मैं, ऐसा जो कि 3 का मल्टीपल, मतलब वहां पे आके ऐड होने पे 3 का मल्टीपल ले दे, 4 लेना चाहिए मुझे। ठीक है, तो उस साइड आएगा, जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा, देखो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आएगा कि नहीं, 6 आएगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 2,4। सिंपल ना। नेक्स्ट इक्वेशन में आता है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, -3। तो हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,-3। अब अगर मैं y की वैल्यू को 1 लूं, x कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। कैसे आ रहा है देख लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, देखो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, डिवाइड हो रहा है। ये तो बेसिक पार्ट भी आता होगा आप लोग को 10th में, है ना। तो ये हो जाएगा 2,1। नेक्स्ट पार्ट क्या लूँ ऐसा मल्टीपल, हाँ चलो 3 ले लेता हूँ, y की वैल्यू को 3 लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, देखो 2x-3 इज इक्वल्स टू 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा हो जाएगा 3। पक्का आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, R 3,3। सिंपल है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ग्राफ प्लॉट करना। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,-2, मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2। 0 मतलब -2 जब आएगा तो यहाँ पे आएगा, ये देखो ये पॉइंट, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1,1, 1,1 ये देगा, ये हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद क्या बोला, 2,4, 2,4 ये हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा बताओ। हमको टारगेट ये रहता है कि हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर दें। अब इसको मुझे परफेक्टली दिखाना होगा। चलो ये बन गया, परफेक्ट है। परफेक्ट हल्का सा गड़बड़ हुआ है लगता है। चलो अब परफेक्ट है। ठीक है, now next my point is p 0,-3, that means on y axis the coordinate is -3, so it will give me -3 here, and 2,1, after that 3,3। बाप रे, बहुत गंदा आएगा ये ग्राफ, बहुत गंदा। मतलब देख लेंगे, हो जाएगा, कौन सा बड़ा है ये भी, नमूना ही तो है। बस कोऑर्डिनेट को अच्छे से रीड करना होगा हमें। हम्म, चलो अब मुझे बता कोऑर्डिनेट कहाँ पे कट कर रहा है। um, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ये जरा सा डिसअपॉइंटिंग है कि मुझे यहाँ पे रीडिंग का प्रॉपर इश्यू नहीं आ रहा है। आप लोग जब भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है, अभी मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है ये -1.5 और -6 के पास है। ठीक है, आप लोग क्या करना, प्लॉट करना ग्राफ पेपर पे, जो आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे को यहाँ पे जो रीडेबल दिख रहा है मुझे, -1.5 और 6 है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चलो चेक भी कर लेते हैं भाई। अब इसका आंसर चेक भी तो करना चाहिए हमें। 1.5 होगा कि -6 होगा, मैं भी चेक करके बताता हूँ आपको। रुको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वेशन हम पुट करेंगे। अगर मैं इसको पुट कर दूं, नहीं 1.5 नहीं है, U1 कॉमा, गलत आ रहा है ये पॉइंट, क्या आना चाहिए, फिर को हमको चेक करने दो। हाँ ये 1,5 होगा, क्या होगा, 1,5 आएगा, 1 -1, -5। याद रखना, ये प्लॉटिंग मुझे यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे कर रहा हूँ तो मुझे समझ रहा नहीं है। आप अपने बुक में करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परफेक्टली दिखेगा। -1, -5 क्यों बताया बताओ मुझे, पहले वीडियोस में मैंने बताया कैसे चेक करते हैं। इज इक्वल्स टू 2, अब 3 × -1 प्लॉट करो, -(-5) इज इक्वल्स टू 2, ये -3 + 5 इज इक्वल्स टू 2,
ये 2 आएगा इज इक्वल्स टू 2, मतलब आंसर हमारा राइट है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -1 कमा -5। ठीक है गाइस, तो याद रखना यहाँ पे मेरा डिस्प्ले पे प्रॉब्लम था। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। अभी कौन सा आता है हम लोग का सम नंबर 5th, सब पार्ट 5th। व्हाट दे हैड गिवन, लुक, 3x minus 4y is equals to -7. After that, 5x minus 2y is equals to 0. So अभी जरा सा मेहनत बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मेहनत। चलो, अब ये सब जो नंबर आते हैं ना, जो ध्यान देना होता है, ध्यान नहीं देंगे तो पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, x का वैल्यू ऐसा लूंगा जो वहां पे जाके ऐड होगा और 4 का डिविजिबल बनेगा। ठीक है, ऐसा नंबर लूंगा जो वहां पे जाके ऐड होगा और 4 का डिविजिबल बनेगा। कैसे करेंगे, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए चलो इसको मेरे को बताओ क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं ग्राफ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है। देखना, um 3x minus 4y is equals to -7, therefore 3x plus 7 is equals to 4y, पक्का। therefore 3x plus 7 अपॉन 4 is equals to y, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू ऐसा लेना है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में 4 से डिवाइड हो जाए। क्या लूं मैं, मुझे बताओ। x का वैल्यू -1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x का वैल्यू -1। तो देखो यहाँ पे -1 पुट करके देखो क्या हो जाएगा, मुझे बताना। माइनस, पहले 3 × -1 + 7 / 4 इज इक्वल्स टू वाई। सो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू वाई। 4/4, हाँ, वाई नहीं हो, 4/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाई का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ये समझे, देखो ये पार्ट मैंने सॉल्व किया है अभी। एक्स की वैल्यू -1 अजम करके, तो -1, 1। ठीक है, अब सिमिलरली मैं दूसरा वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या ले, और बताओ मुझे। 7 में ऐसा नंबर कौन सा ऐड करेंगे, तो अभी एक्स की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, देखो 3, 3 3 9 + 7/4 क्या आएगा, मुझे बताओ। 16/4 विच इज नथिंग बट 4, तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू थी। ठीक है, तो 3,4, हमारा बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,4। सिंपल। अब हमको भी नेक्स्ट टारगेट है थर्ड पॉइंट फाइंड करना। थर्ड पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, चलो मुझे बताओ। कोई नंबर लो यहाँ पे, 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए। 1 लिया, -1 लिया, 3 लिया। अच्छा हाँ, इसके बीच में गैप देखो कितना है, -1 और 3 के बीच में। ऐसे टाइप का जब सम आता है, मेरे को याद आया, ये फंडा है। -1 -3 कितना आ रहा है, -4। ठीक है, -4 +4 कर सकते हो। तो इसके अंदर अभी हमने 3 लिया था, तो 3 के अंदर 4 और ऐड करो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो हमको अभी देखो, अभी हमारा ये नंबर क्या था, 3 था ना। 3 के आगे क्या ऐड कर रहा हूँ, +4 कर रहा हूँ, तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैं 7 नंबर लेता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या लूंगा अभी मैं, 7 लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3 × 7 + 7 डिवाइडेड बाय 4, विच इज नथिंग बट 21 + 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 28/4, विच विल गिव मी 7। तो 7,7 आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, ये हमने एक्स अज्यूम किया था। समझा कैसे, एक जो गैप आता है, फर्स्ट दो नंबर मिलने के जो गैप मिला, उसके बीच में गैप कितना था, -4 या तो +4। तो हम लोग नेगेटिव जाना चाहे तो -4 करेंगे, -1 -4 करोगे तो -5 आ जाएगा। तो नेगेटिव भी जा सकते हो, बट मैंने पॉजिटिव किया। हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सी। क्या मिला बताओ मुझे, 7,7। ठीक है, अब ये पार्ट को मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ये आप लोग को लिखना होता है, लिख के दिखाना होता है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 5x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा कि नहीं, नेगेटिव y इधर आएगा तो। ठीक है, अब मुझे बताओ, x का वैल्यू मैं अगर 0 ले लूं, x का वैल्यू मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2y, तो y भी 0 आएगा कि नहीं, तो ये भी 0 आएगा। मैं p का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 0,0। अगर मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या लेता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल्स टू 2y। ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, y इज इक्वल्स टू 5 बचेगा, तो 2,5 आएगा।
क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,5। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं, क्या ले लूं 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2y। 1s are 2s are 5 2s are 10, so y will be give me 10। if I am taking x is equals to 4, then the value of y will be 10। यहाँ पे हमारा r कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 4,10। ठीक है, ये पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, प्लॉट करना। चलो a कोऑर्डिनेट क्या है -1,1, -1,1 इधर आएगा, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा a कोऑर्डिनेट। b कोऑर्डिनेट क्या बताओ मुझे 3,4, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा b। c कोऑर्डिनेट क्या है 7,7, 7,7, ये हमारा हो जाएगा c कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है बताओ मुझे, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना। चलो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए मैं ग्राफ का मतलब ये लाइन का यूज करूंगा। ये ये पॉइंट प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये P का और Q और R बनाना। फिर P का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे 0,0, 0,0 यहाँ पे होता है P। Q क्या है 2,5, 2,5 यहाँ पे आएगा, ये हमारा क्या है Q। R क्या है मुझे बताओ 4,0, 4,10, सॉरी 4,0 नहीं 4,10, 4,10 इधर आएगा, ये हमारा हो जाएगा R। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना। कंट्रोल V, and this will give me my point of intersections। चलो मिल गया। आंसर क्या आ रहा है, परफेक्ट नहीं है ये, जरा सा क्रिस क्रॉस है। 1,2 देखो ग्राफ में मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पे देखना जरा सा टफ होता है। आप लोग को यहाँ पे पॉइंट पर ऊपर परफेक्टली दिख जाएगा, आप लोग जो अपने ग्राफ पेपर पे बनाओगे। सोल्यूशन क्या आएगा मुझे बताओ। मेरे अकॉर्डिंग 1,2 होना चाहिए, मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। 1,2.5, 1,2.5 आना चाहिए आंसर, 1,2.5। क्यों आना चाहिए, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये देखो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा क्या आना चाहिए 1,2.5। देखो बीच में जा रहा है जरा सा। अगर मेरा देखो 5x - 2y इज 0 होना चाहिए। अगर मेरा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2.5 है, फिर देखो 5 1 5 और 2 × 2.5 वो भी 5 आएगा, तो 5 - 5 कितना होता है 0, मतलब हमारा आंसर राइट है। तो हमारा ये आंसर सोल्यूशन जो अभी हमने फाइंड किया वो क्या है, राइट है। ठीक है, आप लोग अपने ग्राफ में देखोगे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले पे पॉइंट्स देखने जैसे टफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। चलो सिक्स्थ वन, ये स्टार मार्क्ड है, जरा सा टफ होगा क्या देखते हैं। चलो सिक्स पार्ट क्या बोलता है हमें, क्या है 2x - 3y = 4 and the next equation is 3y - x = 4। चलो सॉल्व करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये सब सॉल्व बहुत इजी होते हैं बट हम लोग डर जाते हैं। क्या है देखो ये बताओ मुझे, 2x - 3y = 4। सो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x - 4 डिवाइडेड बाय 2x - 4 = 3y। ठीक है, उससे बढ़िया हम लोग y को अलग करते हैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और एक तरीका बताता हूँ क्या होएगा ये 2x = 4 + 3y होगा कि नहीं। अब ये x क्या हो जाएगा, x = 4 + 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू को चूज करेंगे। सपोज मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, क्या ले लूं 0, तो ये क्या मिलेगा मुझे बताओ, पहला पॉइंट क्या मिलेगा x = 4 + 3 टाइम्स 0/2 विच विल गिव मी 4/2 विच इज नथिंग बट 2। ठीक है, अगर मैंने y 0 लिया था तो मेरा x का वैल्यू क्या आया 2 आया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा मुझे बताओ 2,0। ठीक है, अगर मैं इसी तरह y की वैल्यू क्या लूँ अभी, इजी नंबर लेते हैं। चलो 2 ले लेता हूँ, y को क्या ले लेता हूँ 2, तो x क्या हो जाएगा मुझे बताओ 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 4 +
6/2 क्या देगा ये मुझे? 10/2 आएगा ना। तो 10/2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5,2। एक सेकेंड। हाँ, ये हो जाएगा हमारा 5,2। बी हमारा कोऑर्डिनेट मिला 5,2। ठीक है। अब y जैसे मैंने 2 लिया था, -2 ले लूं। चलो y इज इक्वल्स टू -2। x क्या हो जाएगा? 4 + 3 × -2 विच इज डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट क्या आएगा? मुझे बताओ जरा, सॉल्व करो। मेरे से फास्ट करते हो क्या देखता हूँ मैं। 4 - 6 डिवाइड बाई 2 एंड दिस विल गिव मी -2/2 विच इज नथिंग बट -1। तो हमारा y का वैल्यू अगर -2 लिए तो x का वैल्यू -1 आ रहा है। c कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1, -2। सिंपल। पक्का। चलो मैं पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ये तुमको सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है मुझे बताओ? 3y - x इज इक्वल्स टू 4। तो ये ऐसा होएगा क्या? 3y - 4 इज इक्वल्स टू x। चलो लेट y की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 0। तो क्या हो जाएगा? 3 × 0 - 4 इज इक्वल्स टू x। सो -4 इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा ये क्या मिल गया? -4 और 0। p की वैल्यू क्या मिली? -4, 0। सिंपल। अब अगर मैं q देखूं, क्यू के लिए क्या करूंगा मैं? वाई को मैं क्या ले लेता हूँ? 1 पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 3 × 1 -4 इज इक्वल्स टू एक्स। सो 3 - 4 इज इक्वल्स टू एक्स विच इज नथिंग बट -1 इज इक्वल्स टू एक्स। सो पे -1 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आई? -1, 1। ठीक है। आर के लिए देखते हैं क्या करते हैं। y को मैं 2 पुट करूं तो ये होगा 3 × 2 -4 इज इक्वल्स टू एक्स। 6 - 4 इज इक्वल्स टू एक्स। 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 2,2। आर की वैल्यू क्या मिली? 2,2। सिंपल। ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोग को देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लो। अब हमारा टारगेट क्या है? इस पॉइंट्स को प्लॉट करना। ए पॉइंट क्या है बताओ मुझे? ए पॉइंट 2,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 2। ठीक है। ये हमारा ए है। बी पॉइंट क्या है मुझे बताओ? 5,2, 5,2 इधर आएगा बी। सी पॉइंट क्या है? -1, -2, -1, -2। ये हमारा सी है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है बताओ मुझे? ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना। ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पी बताओ मुझे कहाँ पे? पी -4,0 एक्स एक्सिस पे -4, एक्स एक्सिस पे -4, ये हमारा पी है। ठीक है। पी। क्यू क्या है मुझे बताओ? -1, 1, -1, 1 इधर आएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। आर क्या है? 2,2। चलो ये हमारा आर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक लाइन लेना पड़ेगा, उसको परफेक्टली मैच करना पड़ेगा पॉइंट्स पे। चलो प्लॉट तो हो गया है, बट मुझे अभी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ऑफिस डिफिकल्टी मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग ये 10,5 है। 10,5 करेंगे तो हो रहा है? नहीं, 10,5 नहीं होना चाहिए। 10 लूंगा और 5 लूंगा। नहीं, ये भी नहीं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है यार, क्यों इतना तकलीफ दे रहा है? अम देखो अभी, मुझे सोल्यूशन यहाँ पे कैसे पता करूं मैं? 9.5। नहीं, 9.5 भी लूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। 9.5 लूंगा तो हाँ, 9.5 और 5। 9.5 और 5 है देखो ये।
9.5 और 5। मुझे कैसे पता चला वो मैं ट्रिक बताऊंगा, मैंने कैसे चेक किया। ये इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ पे 10 और 5 देख रहा था बट नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरे को अभी 9.5 अजम्पशन किया मैंने। तो ये देखो 2 × 9.5 -3 × y क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 4। सो ये हो जाएगा 19 - 15। क्या ये 4 आ रहा है, हाँ 4 इज इक्वल्स टू 4। पुट करके देख लिया, हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम लोग पुट करके देखेंगे। 3y - x इज इक्वल्स टू 4। 3 × कितना, 5। अरे बट इसके लिए सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारा कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। कौन सा डायलॉग है वो, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये आएगा -9.5। 15 - 9.5, 5 दे रहा है बट 4 आना चाहिए, 5.5 आ रहा है। गलत है, ये सोल्यूशन नहीं है हमारा। सोल्यूशन हमको परफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो मुझे बताओ। अपने ग्राफ में पॉइंट देखोगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा वो तो। मेरे ग्राफ में यहाँ पे मेरे पास ग्राफ ही ढंग का नहीं है। ढंग का नहीं है मतलब डिस्प्ले है। चलो ये इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं, चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ। सॉल्व करके देख लूँ तो मैं, ये हो जाएगा, देखो सेकंड इक्वेशन को पकड़ो। 3y - x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y - 4 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें ये मिली। इसको हम लोग इक्वेशन वन में डालेंगे। किस में डालेंगे, इक्वेशन वन। इक्वेशन क्या था मुझे बताओ, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। सो 2 × 3y - 4 -3y इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो। 6y - 8 -3y इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 4। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 पे तो मेरा कट ही नहीं हो रहा है। ठीक है। y का वैल्यू 4 आना चाहिए। अगर y 4 रहेगा तो x क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 8। 8,4। अरे भाई इतना क्या गड़बड़ आ रहा है यार। सो सोल्यूशन हमारा होना चाहिए 8 और y इज इक्वल्स टू 4। मेरा इक्वेशंस ऑफ लाइन को मैं अच्छे से जरा ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ क्या गड़बड़ है। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से मिलेगा। दिखा। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों गलत आ रहा था, क्योंकि मेरा ग्राफ का लाइन जरा सा ओवरलैप था। ये अभी आया हमारा 8,4। सिंपल। आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे, आपके ग्राफ में परफेक्टली नंबर दिखेगा। मुझे यहाँ पे डिफिकल्टी क्यों आ रही थी, क्योंकि ग्राफ में स्मॉल मार्जिन नहीं है और मेरा स्केल का लाइन जो है वो परफेक्ट स्ट्रेट नहीं था, हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ठीक। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इजी है, और ये एक्सरसाइज भी इजी है। बेसिकली ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है, स्कोरिंग है। परफेक्टली प्रैक्टिस कीजिए इसका और जुड़े रहिए।